Good morning, students. Today we will do some more questions on plane, and before that we will study how to find the plane equation of plane which is passing through the intersection of two given planes. This is a very important question. Generally a question of 6 marks is asked from this topic. Suppose we are given two planes pi 1 and pi 2. Through their line of intersection, another plane pi 3 is passing. So we have to find the equation of this plane pi 3. Now suppose the equation of given plane is r dot n1 equal to d1 and r dot n2 equal to d2. नॉर्मल फॉर्म हमने ली है. Then the equation of plane which is passing through their intersection, it is given by r dot n1 plus lambda times of n2 equal to d1 plus lambda times of d2. मीन्स सिंपली आपको फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन में लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन की इक्वेशन को ऐड करना है. लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी और राइट साइड एक साथ ऐड. Now the Cartesian form of this is, suppose n1 is a1i plus b2j plus c1k, n2 is a2i plus b2j plus c2k. नॉर्मल वैक्टर्स की इक्वेशन हमने नॉर्मल टू द प्लेन हमने ये ले लिया. एंड r vector is the position vector of any general point on the plane. So let us take it as xi plus yj plus zk. Then you put all these in equation 1. We will get a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda times of second plane, that is a2x plus b2y plus c2z minus d2 equal to 0. प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म जनरली हम यही लेते हैं, a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमने क्योंकि d अभी राइट साइड में लिया था तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करने पे माइनस d1 हो गया. तो जो भी कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन दी है उसमें लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन की इक्वेशन को ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन. और लैम्डा हम किसी गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन होगी उससे फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स. How will you check whether two lines will lie in the same plane or not? Suppose the equation of two lines, they are given in vector form as r equal to a1 plus lambda b1 and r is equal to a2 plus mu b2. The first one is passing through a point A with position vector a1 and is parallel to b1. The second one is passing through the point with position vector a2 and is parallel to the b2. So ab vector will be a2 minus a1 vector, क्योंकि ab वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे. सो a2 माइनस a1 आ गया. अब b1 क्रॉस b2 will be perpendicular to the line. So and AB, if AB is lying, if the given lines lie in the same plane, then AB will be perpendicular to B1 cross B2. So their dot product is 0. So we get A2 minus A1 dot B1 cross B2 is equal to 0. ये हमारी वेक्टर फॉर्म में कंडीशन है फॉर द टू लाइन्स टू लाई इन द सेम प्लेन. अब इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, जिन x1 y1 z1 ये हमने पॉइंट मान लिया जिससे फर्स्ट लाइन पास हो रही है. x2 y2 z2 ये सेकेंड लाइन का पॉइंट है. देन AB विल बी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k. b1 वेक्टर मान लिया हमने a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b2 वेक्टर इज a2i प्लस b2j प्लस c2k.
When you put all the three conditions here, then in determinant form it will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. मतलब फर्स्ट रो आपकी a2 माइनस a1 की आ गई. सेकेंड रो में b1 वैक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, थर्ड रो में b2 वैक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. सो दिस इज द कार्टेशियन, in Cartesian form the condition for the coplanarity of two lines. Now let us do some questions based on these topics. Find the equation of the plane through the intersection of these two planes and it is passing through the point 2 to 1. Given planes की equation हमारे कार्टेशियन फॉर्म में है, तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0 करेंगे. सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0. अब लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कंडीशन दी है कि जो हमारा प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 to 1. सो इन पॉइंट्स को x y z की प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम. सो इट बिकम्स 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस 2 plus 2 plus 1 minus 2 equal to 0. From here you will get lambda is equal to minus 2 by 3. Put this value of lambda in equation 1 and simplify it. We will get 7x minus 5y plus 4z minus 8 equal to 0. So this is the required equation of plane. Next one is find the equation of plane through the line of intersection of the planes which is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0. तो अगेन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है, तो हम पहले इसे जो कांस्टेंट टर्म है उसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे. तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0. अब रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0 करेंगे. यहाँ से हम x y z के कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे. Then we get 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 3 lambda into y plus 1 plus 4 lambda into z minus 1 minus 5 lambda equal to 0. Now this plane is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0. और दो प्लेन्स की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हमारे पास होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. तो दोनों प्लेन्स के x y z के कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे. So 1 plus 2 lambda into 1 and 1 plus 3 lambda into minus 1 then 1 plus 4 lambda into 1 equal to 0. यहाँ से हमारे पास lambda आ जाएगा minus 1 by 3. इस lambda की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे. Then we get the equation of plane as x minus z plus 2 equal to 0. Now the last topic of this chapter is distance of a point from a plane. How to find the distance of a point from a plane? Suppose the given point is P x1 y1 z1 and the equation of plane in Cartesian form is ax plus by plus cz equal to d. तो हम प्लेन की इक्वेशन को प्लेन से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट विल बी गिवन बाय मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मीन्स एक्स वाई जेड को एक्स वन वाई वन जेड वन से रिप्लेस कर देंगे और कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे डिवाइडेड बाय जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स थे, मतलब डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन
उसके स्क्वायर्स के सम से डिवाइड करेंगे, मीन्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। In this case, you have to find the distance of the point 2, 3, minus 5 from the plane x plus 2y minus 2z equal to 9. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई जेड को 2, 3 और -5 से रिप्लेस करेंगे और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो द डिस्टेंस विल बी मॉडुलस 2 + 2 × 3 - 2 × -5, जेड को -5 से रिप्लेस किया, -9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -2 स्क्वायर। सो इट बिकम्स 9/√9, डिवाइड करके ये √9 आ जाएगा एंड √9 इज यहाँ 9/√9 है तो 9/3 लिख सकते हैं हम इसको, √9 को, एंड डिवाइड करके 3 आ गया डिस्टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।